Hello guys, welcome to GATE and ESC classes. Today I will discuss question number 21. Last class we were discussed question number 1 to 20 and today I am going to discuss 21 to 40 questions. 21 to 40. Let's start our question. First question on the screen. Consider the following statements of solid fuels. We were discussing about the solid. We are going to discuss about the solid fuels. Just wait, I'm going to change. Which one will be better? Blue one. This one is not better. Okay, I will be taking the first point is the peat is the first stage in the formation of coal from the wood. This is also right. And peat is also considered as the geological step in coal's formation. And the second one, the average calorific value of bituminous coal is 1524 kilojoule per kg. This is wrong. The kilojoule will be 15, convert it into 3260 kilojoule per kg will be right. This one is wrong. 32,600 kilojoule per kg will be right. Anthracite is very bad, very hard coal and has a sun-shining black luster. This is absolutely right one, because anthracite is the highest grade of coal, and it is a shiny black, dense, hard, brittle coal that borders on a graphite. Okay, this one is right. Third point also is right. And fourth point, wood charcoal is obtained by destructive distillation of wood. वुड चारकोल जो है डिस्टिलेशन ऑफ वुड का बनता है. ये भी सही है, इसी से प्राप्त होता है. डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्राप्त होता है वुड चारकोल जो है. तो ऑप्शन क्या बनेगा अपना? फर्स्ट पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट गलत है, थर्ड पॉइंट सही है, फोर्थ पॉइंट सही है. तो फिर अपना बनेगा 1, 3, 4. Option B will be our right answer. And we will be going for 22. Sorry guys, this question will be 22. 22 number question. I will write here. Consider the following statements for fluidized bed boilers. Fluidized bed boilers. गाइस मैं ईएससी के लिए इतना समझ गया हूँ गाइस, क्योंकि ईएससी के लिए अपने को प्रिपेयर करना है तो ए टू जेड कॉन्सेप्ट अपने को याद रहना बहुत ज़रूरी है. If you want to crack ESC, you have to know the A to Z knowledge about the subject. Then only you can clear the exam. The fluidized bed boilers
produce steam from fossil and waste fuels by using a technique called fluidized bed combustion. This also is right. Cyclone separators are gas cleaning devices that utilizes the centrifugal force created by a spinning gas stream to separate particles from a gas. Particles from a gas. This also is right. In a pressurized fluidized bed boiler, the combustion process take place in a pressurized environment, resulting in compact furnace and improved combustion efficiency. This also is used. This statement is absolutely right because this in the fluidized bed boiler, the combustion process take place in pressurized environment. क्योंकि जो फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर है वो मतलब प्रेशराइज इन्वायरमेंट में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, जिससे अपने को इम्प्रूव देखने के लिए मिलता है कम्बशन की इफिशियंसी में। तो गाइस इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, इसमें के हर ऑप्शंस राइट है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, consider the following statements consider the following statements for steam turbines. The ratio of actual enthalpy drop to its isentropic enthalpy drop is known as mechanical efficiency. Mechanical efficiency. Wrong. Because mechanical efficiency can be defined by sorry guys for my mistake, and this one is wrong. मैकेनिकल इफिशियंसी का ए नहीं आएगा। द रेशियो ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड्स का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड्स टू एंथैल्पी ड्रॉप in the stage is known as the degree of reaction. This is absolutely right for the steam turbines. The rate of a turbine is the example of reaction turbine. This also is wrong. Curtis turbine is an example of impulse turbine. This one is right. 2 and 4 will be our answer. And the rate of a turbine is pressure compounding multi-stage impulse turbine. और Curtis turbine is a velocity compounding multi-stage impulse turbine है, Curtis turbine को बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, Curtis turbine is velocity compounding multi-stage impulse turbine. This one is fourth point, and the option will be option A is our right answer. We will be moving for next question. Consider the following statements for cooling towers. कूलिंग टावर्स के लिए अपने को क्वेश्चन आया है। Cooling towers. The cooling tower is an artificial device which is used to cool the hot cooling water
कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर मोर इफेक्टिवली। राइट, क्योंकि जो कूलिंग वाटर जो है आर्टिफिशियल डिवाइस है जो कि यूज़ होता है कूलिंग वाटर, जो हॉट कूलिंग वाटर रहता है कंडेंसर के आउट में जो जाता है उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंटली में फ्लो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कूलिंग टावर। और सेकंड पॉइंट जो है the amount of water usually lost with the induced draft cooling tower ranges from 5% to 6% by evaporation। इसमें देखो ये जो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसमें इफिशिएंसी जो कूलिंग टावर की जो रेंज है 1 to 2% बाय इवापोरेशन होता है। 1 to 2% इसका इवापोरेशन होता है, 1% to 2% इसका इवापोरेशन होता है। तो ये गलत दिया है यहाँ पे, मैं इधर सही लिख दिया हूँ। द अमाउंट ऑफ cooling the amount of water usually lost with the induced draft cooling tower ranges from 7% to 8% by drip losses। इसका भी जो ड्रिप लूसेस होता है वो भी यहाँ पे रॉन्ग दिया है। इसका जो ड्रिप लूसेस होता है 0.5% टू 2% इसका ड्रिप लूसेस होता है, इसका ड्रिप लूसेस होता है। तो इसको याद रख लेना गाइस, ये रॉन्ग है। The rate of evaporation of water and its cooling effect on remaining water depends upon the relative humidity of air passing through the water। ये भी बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि the rate of evaporation of water and its cooling effect on the remaining water depends upon the relative humidity of air passing through water है। तो फिर अपने को दो ही मिला है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ का जो ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट जो है राइट है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 25 की ओर जाएंगे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग at 50 rpm delivers 0.00736 meter cube per second of water। The diameter of the piston is 200 mm and stroke length is 300 mm। What is the percentage slip of the pump? इसका अपने को परसेंटेज स्लिप निकालना है अपने को। उससे पहले गिवन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। गिवन अपने को दिया है n इज इक्वल टू 50 rpm दिया है, Q दिया है 0.00736 मीटर क्यूब पर सेकंड, और D दिया है 200 mm दिया है, L दिया है 300 mm। अपने को परसेंटेज स्लिप फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज स्लिप का बहुत सिंपल फार्मूला होता है परसेंटेज स्लिप का, उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू Q theoretical minus Q actual upon Q theoretical into 100 इक्वल टू Q theoretical फाइंड आउट करने के लिए एरिया इंटू लेंथ इंटू n अपॉन 60 इक्वल टू π/4 0.20 का होल स्क्वायर इंटू 0.30 इंटू 50 अपॉन 60।
रखेंगे तो अपने पास आंसर आएगा क्यू थ्योरेटिकल का 0.00785 मीटर स्क्वायर सेकंड। तो अपन लोग परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए अपन लोग फॉर्मूले में रखेंगे क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपन क्यू थ्योरेटिकल इंटू 100 रखेंगे। 100 के मतलब क्यू थ्योरेटिकल का सबका वैल्यू रख देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.00785 माइनस क्यू एक्चुअल। क्यू एक्चुअल क्या दिया है अपने को, क्यू एक्चुअल ये रहा 0.00736 अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। फिर से यहाँ पे रखेंगे क्यू थ्योरेटिकल का वैल्यू 0.00785 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 6.2% आएगा। तो गाइस ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस, 6.25 है अप्रॉक्स, इसको मान लेते हैं अपन लोग। तो गाइस अपने को परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला याद रखते तो डायरेक्ट बन जाता। परसेंटेज स्लिप का जो फॉर्मूला होता है क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। बस इस फॉर्मूले में रख के अपन लोग फिर उसका क्यू थ्योरेटिकल अपने पास नहीं दिया था, फिर क्यू थ्योरेटिकल फाइंड आउट करके फिर वैल्यू रख देने से अपने पास आंसर आ जा रहा है 6.25। तो अप्रोक्स अपन लोग 6.29 को अपन लोग ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए पंप discharges a liquid into a tank at the rate of 0.032 meter cube per second. The tank 1.5 meter in diameter and 4.20 meter in height can hold 3500 kg of liquid. Density of liquid and mass flow rate of the liquid handled by the pump are respectively. तो सबसे पहले अपन लोग लिख लेंगे अपने को क्या क्या गिवन है, गिवन डाटा लिख लेंगे। इसको अपन लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ए सिलेंड्रिकल assuming the cylindrical tank the volume of tank is equal to pi by 4 d square into h। तो वैल्यू रखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू इधर pi by 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 4.20 इक्वल टू 7.418 मीटर क्यूब। ये जो है बहुत ही अच्छा, इससे अपन लोग वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लिया। फिर उसके बाद अपन लोग डेंसिटी हैंडल्ड बाय पंप निकालेंगे। ठीक, डेंसिटी अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे दिया है अपने को। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करना है, मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय पंप फाइंड आउट करना है अपने को। तो फिर मास बाय वॉल्यूम अपॉन 3500
दिया गिवन है, वहाँ पे मास अपने को गिवन है और लिक्विड भी गिवन है, वॉल्यूम भी अपने को गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम अपने अभी अभी फाइंड आउट किए हैं। तो 7.418, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 471.8 kg पर सेकंड आएगा, kg पर सेकंड। नीचे लिख देता हूँ सेकंड को, kg पर सेकंड। फिर इसके बाद मास फ्लो रेट हैंडल्ड बाय द पंप, मास फ्लो रेट हैंडल्ड बाय द पंप का अपन निकालेंगे। मास फ्लो रेट हैंडल्ड बाय द पंप निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल टू 0.032 into 471.80 kg पर सेकंड। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा, उसको सॉल्व इनटू करेंगे तो 15.0 15.097 kg पर सेकंड अपने पास आंसर आ जाएगा। तो किससे मिल रहा है 15.09 kg पर सेकंड। अच्छा, अपने को वॉल्यूम मिल गया है, वॉल्यूम अपने पास था 471, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय पंप तो अपने पास है 471.80 आया है, 471 इसको लेंगे। ऑप्शन बी जो है अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। क्या क्या फाइंड आउट किए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये अपना डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय पंप है और ये वॉल्यूम रेट है, वॉल्यूम रेट हैंडल्ड बाय द पंप है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इन फ्रांसिस टर्बाइन as the water discharge is the radial at the outlet, the velocity variable at the outlet becomes infinity होता है गाइस। ये तो किसी को भी पता होगा, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज इस रेडियल ऑन द आउटलेट एंड हैंस वेरियल वेलोसिटी, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द आउटलेट इज 0, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसका होता है 0 होता है। तो अरे सॉरी गाइस, मैंने गलत आंसर डाल दिया, 0 आएगा इसका, क्योंकि मैं 0 ऐसा समझ रहा था इसका, 0 जो आंसर है। ऑप्शन ए विल बी, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर। 0 गाइस, बाय मिस्टेक मैं इन्फिनिटी को लगा दिया था, देखा नहीं था। एंड द क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है गाइस, इसको मैं रीड करता हूँ। A pump impeller is 375 mm in diameter and it discharges water with velocity components of 2 meter per second and 12 meter per second in the radial and tangential directions respectively. The impeller is surrounded by a concentrical cylindrical chamber with the parallel sides.
the outer diameter being 450 mm. If the flow in the chamber is a free spiral vortex, what are the tangential velocity and radial velocity at the outlet of the chamber respectively? सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिख देता हूँ। यहीं पे गिवन डाटा आपने को दिया है। सबसे पहले D2 दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 375 mm दिया है, और VW2 दिया है अपने को, वेलोसिटी कंपोनेंट जो भी है VW2 दिया है अपने को 12 मीटर पर सेकंड दिया है। डिस्चार्ज है VW2 जो है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर है, और वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है अपने को VF2 से डिनोट करेंगे 2 मीटर पर सेकंड दिया है। इसको मैं सिंपल फॉर्मूले में फ्री वॉर्टेक्स मोशन के थ्रू अपन इसको सोल्व करेंगे। फ्री वॉर्टेक्स मोशन VW into R is equal to constant VW2 into R2 is equal to VW3 into R3। तो अपन लोग इसके फॉर्मूले में रखेंगे 12 into 375 upon 2 equal to VW3 into 450 upon 2 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो VW3 अपने पास आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो गाइस अपने को मिल गया है टेंजेंशियल वेलोसिटी, अपने को मिल गया है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन दो जगह 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड। तो अपने को इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, रेडियल वेलोसिटी को भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अपने को मिलेगा। तो फिर रेडियल वेलोसिटी के लिए अपने को फिर से फॉर्मूला डाल, इसको सब वैल्यू का अपन अप्लाई कर देंगे। VW2 इज इक्वल टू VW3 अपॉन VF2 अपॉन VF3 तरह वैल्यू रख देंगे। तो अपन लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू रखेंगे। VF3 इज इक्वल टू VF इंटू 2 इंटू VW3 अपॉन VW2 इक्वल टू, यहाँ पे अपन VF2 अपने पास है 2 है, और VW3 10 मीटर पर सेकंड है, और VW2 कितना अपने को पहले से दिया हुआ है VW2 12 मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वहाँ पे लिख देता हूँ मैं गाइस, यहाँ पे लिख देते ना 1.67 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ऑप्शन बी जो है राइट है। तो 29 क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग types of impellers used to handle highly solid leaden liquids like concrete and slurry? Fully opened impeller is used to handle high solid leaden liquids like concrete and slurry। concrete and slurry इसका वो है यूज़ करते हैं। तो अपना जो है फुल्ली ओपन इम्पेलर में इसका यूज़ होता है, फुल्ली ओपन इम्पेलर में। ऑप्शन ए इज
राइट आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। in a reciprocating in a single reciprocating pump without air vessel, the ratio of the average frictional head to the maximum frictional head in the delivery pipe। अपने को पूछ रहा मैक्सिमम फ्रिक्शनल हेड इन द डिलीवरी पाइप कितना होगा। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है गाइस। तो अपने को इसको मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। जी इसका विदाउट एयर वेसल जो है द रेशियो एंड इसका जो डिलीवरी हेड मैक्सिमम फ्रिक्शनल हेड इन डिलीवरी पाइप जो रहता है 2/3 रहता है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल head in delivery pipe is 2/3। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। and 31 question also is very simple। A turbine develops 800 kilowatt when running at 100,000 rpm। The head on the turbine is 30 meter। If the head is reduced to 18 meter, what is the speed developed by the turbine? What is the speed developed by the turbine? ये अपन इस इजली सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट स्पेसिफिक का फॉर्मूला अपने को याद रहेगा तो डायरेक्ट अपन इसको फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन अपने को है P1 दिया है अपने को 8000 किलोवाट। N1 दिया है अपने को 1000 rpm। H1 दिया है अपने को 30 मीटर। H2 दिया है 18 मीटर और अपने को N2 फाइंड आउट करना है। जो स्पेसिफिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट का जो फॉर्मूला होता है NU इज इक्वल टू N अपॉन रूट ओवर ऑफ H। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ H2 अपॉन H1। N2 is equal to N1 into रूट ओवर ऑफ H2 अपॉन H1 इक्वल टू वैल्यू अप्लाई करेंगे। N1 की जो वैल्यू है 1000 है और H2 की जो वैल्यू है 18 है और H1 की जो वैल्यू है 30 है। by solving this one we get 774.600 rpm। it's the value of N2। देयर सीम एरर। ये जो क्वेश्चन है कुछ एरर की बात है तो ऑप्शन डी को अपन लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि 7074 आ रहा है, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम होगा गेट की तरफ से शायद, लेकिन आंसर जो है ए आएगा। तो गाइस मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे जाता हूँ। द स्टीम टरबाइन कैन बी गवर्न बाय द फॉलोइंग मेथड्स। स्टीम टरबाइन सबसे पहले क्या क्या होता है। स्टीम टरबाइन जो होता है थ्रोटलिंग गवर्नर होता है, नोजल कंट्रोल गवर्निंग होता है,
लेकिन उससे पहले अपना स्टीम टरबाइन जो है थ्रोटल गवर्निंग को मतलब गवर्न करता है। तो भाई सबसे पहले थ्रोटल गवर्निंग को कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद नोजल कंट्रोल गवर्निंग को कंट्रोल करता है, सेकंड नंबर पे आएगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ दी थ्रोटल एंड नोजल कंट्रोल गवर्निंग ये तीसरे नंबर पे आएगा। और रिएक्शन गवर्निंग इज डन टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन बाय यूज ऑफ रिएक्शन ब्लेड, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो गाइस अपन लोग सबसे सबसे मतलब जो मतलब एकदम पॉइंट एकदम क्लियर है उसी को अपन लोग लेंगे। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर जाएंगे अपन लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भी। इन ए गैस टरबाइन हीट सप्लाइड इस हीट सप्लाइड दिया है अपने पास इतना किलो जूल पर केजी और हीट रिजेक्टेड दिया है इतना केजी। तो अपन लोग सिंपल सा इफिशिएंसी की फॉर्मूला में अपन लोग रख देंगे क्यू। तो फिर अपने पास क्यू रिजेक्टेड माइनस क्यू हीट सप्लाइड की फॉर्मूला में रखेंगे। तो फिर डायरेक्ट अपन लोग मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ यहाँ पे 66 7.2 माइनस 39143 अपॉन 667.2 इज इक्वल टू 41.33% इसका आंसर है। तो फिर ऑप्शन सी विल बी और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 द कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन वर्क्स ऑन दी। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन मतलब किसके साइकिल में मतलब वर्क करता है कांस्टेंट गैस टरबाइन। ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन हो गई। ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है। ब्रेटन साइकिल पे गैस टरबाइन वर्क करता है। प्रेशर गैस टरबाइन जो है वर्क करता है गाइस। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर जाएंगे। इन हाइड्रोलिक turbine if the energy available at inlet is only kinetic energy then that type of turbine is। इस टाइप के टरबाइन को अपन लोग क्या बोलेंगे इम्पल्स टरबाइन बोलेंगे। क्योंकि देखो इम्पल्स टरबाइन जो होता है द एनर्जी एट द एंट्रेंस टू द रनर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली। द प्रेशर रिमेन्स एटमॉस्फेरिक थ्रू आउट द रनर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आप लोग को भी डाउट ना हो। इम्पल्स टरबाइन जो होता है द एनर्जी at the entrance to the runner is in the form of kinetic energy only। the pressure remains atmospheric throughout the runner। इसका जो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक थ्रू आउट द रनर रहता है। गाइस इसका जो आंसर होगा इम्पल्स टरबाइन होगा। मैं टिक कर दिया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मुड़ते हुए सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है इनवर्ड टरबाइन होता है। इनवर्स टरबाइन होता है। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप has an impeller of 30 centimeter outer diameter. The vane tips at radial at outlet for a rotative speed of 1450 rpm. What is the manometric head developed? Assume manometric efficiency दिया है अपने को 82% और ग्रेविटी दिया है
9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो ऐसा अपन लोग वेन डायग्राम वगैरह बनाते हुए नहीं बैठेंगे, अपन लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। D2 दिया है अपने को 30 सेंटीमीटर दिया है, और अपने को RPM दिया है 1450 RPM दिया है, और एफिशिएंसी मैनोमेट्रिक का दिया है 82% दिया है। अपने को HM फाइंड आउट करना है, और ग्रेविटी भी दिया है अपने को 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो गाइस इसको अपन लोग U2 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। U2 पाई D2n/60, तो फिर पाई इंटू D2 की वैल्यू अपने पास 0. सॉरी गाइस फॉर माई मिस्टेक, 0.30 इंटू 1450/60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा U2 की, U2 इज इक्वल टू 22.765 मीटर पर सेकंड आएगा। और इसका अपन को इफिशियंसी मैनोमेट्रिक निकालना है। इफिशियंसी मैनोमेट्रिक निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इसको याद रख पाओ। मैनोमेट्रिक इक्वल टू G/HM upon VW2 into U2 is equal to G/HM upon U2 का स्क्वायर। तो अपन लोग वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अपने पास इफिशियंसी मैनोमेट्रिक का फॉर्मूला दिया हुआ है 0.82, इसको हटा 0.82 दिया हुआ है, और अपने पास G का वैल्यू है 9.81 इंटू HM अपॉन U2 का स्क्वायर भी अपन लोग फाइंड आउट कर लिए 22.765 का स्क्वायर, और इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो HM की जो वैल्यू आएगी HM की जो वैल्यू आएगी 43.32 मीटर में आएगा इसका जो HM की जो वैल्यू आएगी। तो अपना जो आंसर है 43, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। इलिनॉर साइकिल इज यूज्ड फॉर, सबका एक एक बता देता हूँ। गैस टरबाइन कहाँ पे यूज होता है, गैस टरबाइन कहाँ पे यूज होता है, ब्राइटन साइकिल, एक क्वेश्चन आया भी था ब्राइटन साइकिल और पल्स जेट इंजन जो है लिनियर में यूज होता है, लिनियर साइकिल पे यूज होता है। और ऐसा इंजन सभी लोग जानते होंगे क्योंकि सब लोग चलाते हैं इसको, ऐसा इंजन को यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं अपन लोग। डीजल नहीं अरे यार सॉरी यार, फोटो लिखने का चक्कर में डीजल आ गया। ऑटो साइकिल है, और CI इंजन जो है डीजल साइकिल है। ठीक गाइस, इसको याद रख लेना ताकि आपको जब कभी और नेक्स्ट PSUs वगैरह में आप पूछे तो आप डायरेक्टली इसको देख के, इसको मैंने जो पढ़ा है इसको देख के आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। गैस टरबाइन जो होता है ब्रेटन साइकिल होता है, पल्स जेट इंजन जो होता है लिनियर साइकिल होता है, SI इंजन जो होता है ऑटो साइकिल होता है, और CI इंजन जो होता है डीजल साइकिल होता है।
तो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है लेनर साइकिल क्या होता है, तो लेनर साइकिल क्या होता है, पल्स जेट इंजन होता है। लेनर साइकिल अपने को पूछा है, तो लेनर साइकिल का पल्स जेट इंजन, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये जो क्वेश्चन है आईसी इंजन का क्वेश्चन है। डीजल इंजन आज ए कंप्रेशन रेशियो, क्या बोलते हैं, आईसी इंजन जो है पढ़ने के लिए वी गणेशन जो है बेस्ट बुक है, प्रेफर कर सकते हो आप। अगर इंजीनियरिंग सर्विस या गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वी गणेशन जो है बेस्ट बुक है। उसके आगे अगर और पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा बुक और ले सकते हैं, पर इतना इनफ है अगर आप कम टाइम है आपके पास तो। Diesel engine has a compression ratio of 20 and cutoff take place at 15% of the stroke. What is the cutoff ratio? इसका कट ऑफ रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है गाइस। उससे पहले मैं यहाँ पे साइकिल बना देता, पीवी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि समझने में इजी पड़े। सॉरी गाइस, मैं अभी अभी पेन टैबलेट जो यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे उसी कारण मेरा जो राइटिंग है थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। कुछ दिनों में लाइन पे आ जाऊँगा। तो गाइस ऐसे ही मतलब कुछ थोड़ा बहुत है, बन सकता है, मतलब तो एग्जैक्ट तो नहीं बनाया, मतलब समझने के लिए आप लोगों को बना दिया हूँ, आप लोग इससे समझ सकते हैं। तो देखो जो साइकिल है 1 2 3 है, इधर से जाएगा, इधर से पीवी, तो अपने को निकालना है कट ऑफ रेशियो। तो अपने को दिया हुआ है, अरे सॉरी गाइस फॉर माय मिस्टेक, अपने को दिया हुआ है V1/V2 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू R दिया हुआ है अपने को, कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है अपने को V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 5 का परसेंट का अपन लोग 100 ले लेंगे, तो V1 माइनस V2 आएगा, और इसको V3 माइनस V2 माइनस 1 इक्वल टू करेंगे, तो इसको सेम टू सेम लिख लेंगे 100 V1 V1 माइनस V2 इसको ले लेंगे। तो फिर अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर उधर करके अपन लोग कर लेंगे। चलो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, V3 माइनस V2 3 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू, अपने पास V1 अपन V2 का वैल्यू है, उसका अपन 1/20 करके 20 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 19/20 प्लस 1 इक्वल टू 1.95 जो है राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर जाते हैं अपन लोग। ये भी सेम क्वेश्चन है, आईसी इंजन का क्वेश्चन है ये भी। A cubic capacity of 4-stroke over square spark ignition engine is 275 cc. The clearance volume दिया है अपने को 25 cc. What is the compression ratio of the engine? ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम थोड़ा बहुत बनेगा। मैं आपको यहाँ पे भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा पीवी डायग्राम।
1 2 3 4 3 4। ठीक है, ये जो है पीवी डायग्राम है, ये वीसी है, ये 1 है। सॉरी गाइस, कुछ नहीं है, ये वी है। यहाँ पे लिखते हैं वी एस इक्वल टू 275 दिया है अपने को, और V1 माइनस V2 इक्वल टू V1 माइनस VC को सॉल्व करेंगे तो V1 VC इज इक्वल टू 25 इक्वल टू V2। इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 का हम लोग सॉल्व करेंगे तो Vs प्लस VC इज इक्वल टू 275 और VC दिया है अपने पास 25 इक्वल टू 300। तो गाइस अपने पास आ गया 300। तब हम लोग R का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से कंप्रेशन रेशियो की। V1 अपॉन V2 इक्वल टू V1 अपने पास है 300 और V2 अपने को दिया हुआ है 25, तो इक्वल टू 12 इसका आंसर आएगा। 12 इज द आंसर। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ए भी आईसी इंजन का क्वेश्चन है। द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए सिलेंडर single cylinder 4-stroke engine is 60%. The frictional power is estimated to be 30 kilowatt. What is the indicated power? अपने को इंडिकेटेड पावर निकालना है। सबको पता ही होगा कि मैकेनिकल इफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर होता है। अपने को दिया हुआ है 0.6, मैकेनिकल इफिशिएंसी दिया है 60% का, 0.6 लिखेंगे अपन लोग, और ब्रेक पावर दिया हुआ है अपने को। चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे फुल अप्लाई कर देता हूँ ना। अपने को इंडिकेटेड पावर निकालना है तो आईपी को इधर ले लेते हैं। पी मैकेनिकल इक्वल टू, मेरे को ब्रेक पावर कितना दिया हुआ है, ब्रेक पावर फ्रिक्शनल, अच्छा फ्रिक्शनल पावर दिया है मेरे को 30 अपॉन 0.4 इक्वल टू 75 kilowatt. 75 kilowatt will be our answer, and this is enough for today, and tomorrow I will add one more 20 questions. By adding 20 questions I will complete all the questions of engineering services paper 2 exam, paper 2 questions of mechanical engineering. So guys, thank you so much, and if you like my video, like and subscribe and share with your friends guys. Okay, so we will meet you on next lecture.